Morning, church. Welcome to Zuf. You're in Zuf this morning. We worship here like we know what Zuf really is. When we worship here, there are demonic principalities that are threatened. There are political powers that are shifting. There are so many different realms. There are so many different schemes and plans that the enemy has made, which are foiled because of your prayers and your worship this morning. You never know the power of your worship till you really see it from God's eyes. ज़ूफ, आप लोग यही हैं? आप में से कौन कौन ज़ूफ है? I was just telling them that there is power in your worship. आपके आराधनाओं में सामर्थ है. When you worship, there are principalities that shift. और जब आप आराधना करते हैं तो दुष्ट की शक्तियां दूर हो जाती हैं. When you worship, there are strongholds that come crumbling down in your worship. और जब आप आराधना करते हैं, जो दुष्ट के किले हैं वो ढा दिए जाते हैं. See, there are so many things that we can achieve in prayer, but there are greater things that can be achieved through worship. और हम प्रार्थना से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम आराधना से उससे भी बढ़कर चीजों को हासिल किया जा सकता है. You know, and the power of worship is the most crucial when you don't have a reason to worship. और ये और भी बहुत अच्छी बात हो जाती है आराधना की, वो ये कि आराधना करने के लिए आपके पास कोई कारण ना हो और उसके बावजूद भी आप आराधना करते हैं. You know the story of Job. आप अय्यूब की कहानी के बारे में जानते हैं. He did not have a reason to worship. उसके पास कोई कारण नहीं था कि वो आराधना करे. He had reasons to not worship. उसके पास कारण थे आराधना ना करने के, But still he continued to worship. बावजूद उसके वो लगातार आराधना करता रहा. See, I want you to envision this, okay? You know, have you seen a cricket stadium? आपने क्रिकेट का स्टेडियम देखा होगा. And you can imagine one side of the stadium full of, let's say, Pakistani supporters. और आपने देखा होगा स्टेडियम के एक तरफ जो पाकिस्तान के समर्थक दर्शक होते हैं इकट्ठा बैठे हैं. And one side is full of Indian supporters. और दूसरी तरफ पूरे भारतीय समर्थक. And then there is like 20 guys playing in the field. और देखिए 20 लोग वहां पर खेल रहे हैं मैदान में. And when one team is winning, one entire side erupts. और जब एक टीम जीतती है तो एक तरफ पूरा का पूरा उमड़ जाता है, उछल जाता है जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं. Every boundary that is hit and every extra run that is scored, this side is going crazy. और यदि एक्स्ट्रा अतिरिक्त एक रन लिया गया या एक चौका मारा गया तो जो समर्थक हैं वे उछल जाते हैं. And that's exactly what happens in the universe around us when we choose to worship. और यही होता है ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हो जाते हैं. See, you should understand, when Job was put into that test, into that trial, the whole of the spiritual world was watching that. और देखिए अय्यूब को जब परखा गया, जब उसकी परीक्षा की गई तो पूरे के पूरा ब्रह्मांड जो है उसके विरुद्ध में था. They were all watching it. और वो उसको निगाह बनाए रखे थे, उसको वो ताड़ रहे थे, उसको वो देख रहे थे. Because there was a conversation between God and Satan. और इसके पृष्ठभूमि में परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत चल रही थी. And Satan had made a bet with God saying this guy will not worship. और शैतान ने परमेश्वर से एक शर्त लगाई कि ये अय्यूब जो है ये आपकी आराधना नहीं करेगा. And so God is like, okay, let's see who will win. और तब परमेश्वर ने ये कहा कि ठीक है, देखते हैं कौन जीतेगा. So you can imagine all of the angels of God on one side.
तब आप कल्पना कीजिए, परमेश्वर के स्वर्गदूत एक तरफ and all of demonic spirits on the other side, और पूरे शैतानी शक्तियां दूसरी तरफ, and they are all watching every action that Job is going to do. और वे सभी निहार रहे थे अय्यूब को कि अब ये क्या करने जा रहा है, How is he going to respond? अब ये किस प्रकार का रिस्पॉन्ड करेगा, What will he open his mouth and speak? अब ये अपना मुंह खोलकर क्या कहेगा या बोलेगा. Every time he said the right thing, हर बार जब उसने सही बयान दिए, वक्तव्य दिए, see, you should understand, you know, what we think is that only nobody is interested in our life, nobody is interested in our choices. आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई दूसरा हमारी चुनाव पर या हमारे जिंदगी में कोई खास रोचकता या कुछ लगाव नहीं रखता होगा. See, but when you're a child of God, all of heaven is interested in your actions. लेकिन आप जब बालकी अवस्था में शैशव काल में रहते हैं तो पूरा का पूरा स्वर्ग आपके ऊपर वो निगाह रखता है. And every time Job chose to worship God, the entire angelic realm, they would have joined Job to worship God. और जब अय्यूब ने आराधना करने का आगाज किया, पूरे ब्रह्मांड से स्वर्गदूत एकत्रित होकर उसकी आराधना में उसके साथ शामिल हुए. And whenever Job's friends would do the job of judging and condemning and saying, Job, you're wrong, all the demonic angels is like, ah, that's good. Come on, make him hurt even more. और जब अय्यूब के मित्र मंडली उसको राह पर तोहमत लगाती थी, जब उससे ऐसी बातें बोलती थी जो नहीं बोलना चाहिए था, जब उस पर आरोप वे लगाते थे, तो शैतान और उसके दूतों को बड़ा मजा आता था. वो उसे और उत्साहित करते थे कि हाँ, तुम और बोलो. And so today, your worship, you should understand, your worship can bring God glory, or it can, your words, your complaints, it can bring him dishonor. आप देखिए, आपकी आराधना और आपके शब्दों से आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं. उसी समय आप परमेश्वर की महिमा के यदि शब्दों को नहीं कहते सही तरीके से, तो आप उनका अनादर भी कर रहे हैं. इस बात को जरूर ध्यान रखिए. So the real test of your worship is not what you do when we come here. और इसलिए आपका सही मायने में आपकी परीक्षा आराधना में जब हम यहाँ पर आए हैं तब नहीं होगी. The real test of your worship is when you go back home and your parents tell you something that you don't like. आपका सही मायने में आपका परीक्षा और आपकी परख होगी उस समय जब आप यहाँ से घर पहुंचेंगे और आपके अभिभावक, आपके माता पिता आपसे कुछ कहें जो आपको पसंद ना हो. उस समय your best friends, they cheat on you, they betray you, and when they hurt you, जब आपका घनिष्ठ मित्र आपको धोखा दे या आपके साथ वो छल करे, when your church doesn't like or appreciate what you do, जब आपकी कलीसिया इस बात की सराहना नहीं करे जो कुछ आप करते हो, that is when the real test of your worship is. और तब आपकी सही मायने में आराधना की परख और परीक्षा होती है. How do you respond at that time? और उस समय आपका हल, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? That will set you apart as a zuf. और तब आपको जुफ के तौर पर दूसरों से एक अलग दर्शाना होता है. You know the story of Saul. The Bible says he entered into the region of Zuf and his eyes were opened. और जैसे ही वो जुफ नामक उस देश में पहुंचा, शाऊल, उसकी आंखें खुल गईं. And he said, I need to go back home. और वो ये कहता है कि अब मुझे अपने घर लौट चलना है. And then they said, no, there is a man of God in Zuf. और तब वे लोग कहने लगे, नहीं नहीं, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जुफ में रहता है. And then Saul took the last offering that he had and he went to see the man of God. और तब शाऊल ने जो उसके पास अंतिम सिक्का था भेंट के लिए वो लिया और निकल पड़ा. And the Bible says in verse 11, बाइबल कहती है पहला सामुएल उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पे, it says, as they were climbing the hill to the town, they met some young woman coming out to draw water.
So Saul and his servant asked, "Is the seer here today?" उस नगर की मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, पहला सामुएल उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या दर्शी वहां है? Who is he looking for? He's looking for the seer. और वो किसकी खोज में है? वह दर्शी की खोज में है। But on the way to see the seer, he sees some young girls. और दर्शी के दर्शन की खोज में शाऊल निकला तो था, लेकिन उसकी मुलाकात कुछ कुंवारियों के साथ, सुंदर महिलाओं के साथ हुई। And you know that in the Bible days, when they say girls are at the well, you know the well was the place where you interact with others. और बाइबल में जैसा पुराने नियम में लिखा है कि लोग कुओं में मिलते थे, कुएं के पास में, और कुआं एक ऐसा जगह था जहां लोग आपस में बातचीत और वार्तालाप करते थे। You know, all the conversations that you would see at the well are conversations that led to marriage. और आमतौर पर कुएं के पास में इर्द गिर्द में जो लोग जुटते थे, उनकी बातचीत का मूल विषय विवाह के लिए होता था। You know the stories? Come on, don't tell me that you don't know the stories. आप जानते हैं इसके पीछे की पृष्ठभूमि या वो कहानी? You know where did Eliezer, the servant of Abraham, find Rebekah? रेबेका की मुलाकात एलियाजर से, जो कि अब्राहम का एक सेवक था, कहां पर हुई? Isaac and Rebekah. You know the story of Isaac and Rebekah? Come on, church. You know, Genesis is the one book of the Bible that we've all read, right? At the beginning of the year, when we want to read Bible reading plan, we all finish Genesis. और साल के शुरुआत में हम चाहते हैं कि बाइबल पूरा पढ़ें और उत्पत्ति तो पढ़ ही लेते हैं। And we know the story of how Isaac got married to Rebekah. और हम जानते हैं कि इसहाक ने रिबेका से विवाह किस प्रकार किया। How did it happen? Here was Rebekah who was at the well taking water for herself, and that is where Eliezer came. और एलियाजर वहां पर पहुंचा जहां पर वो पानी निकाल रही थी अपने लिए और परिवार के लिए। And that is where the matchmaking happened. और वहां पर उनका परिचय सम्मेलन हुआ, मुलाकात हुई। Let me ask you about Jacob and Rachel. Where did they meet? मैं आपसे पूछता हूं कि याकूब और रेचल का मुलाकात कहां पर हुई? Come on, Bible readers. Where did they meet? At the well. Jacob and Rachel also met at the well. और कुएं के पास ही इनकी भी मुलाकात हुई थी। Where did Moses meet his wife? और मूसा की मुलाकात उसकी पत्नी से कहां पर हुई? At the well. कुएं के पास में। Do you know, so in the old days, the well back in the day is like Instagram or Facebook of today. और कुआं जो है पुराने दिनों में आधुनिक इंस्टाग्राम या फेसबुक के समान था। This is where all the matchmaking happens. और वहां पर ही शादियों का निर्णय और पूरी बातें होती थी। This is where all the romance begins. और वहां पर ही रोमांस जो है उसका आगाज हुआ करता था। And that is the same temptation that Saul is facing right now. और यहां पर देखिए कि शाऊल भी इसी प्रकार की एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। And Saul is tempted to deviate from his desire to see the seer to go and have a conversation with these girls. और देखिए ये इसको इतना उकसाया गया, ये खुद ही इस प्रकार से उसके मन में आया कि जो उसका दर्शन को या दर्शी को जो खोजने की मूल वजह थी, उससे वह भटक कर इन लड़कियों से ये बातचीत करने लगा। See, the thing is that sometimes a conversation with somebody that you're not supposed to have a conversation can derail your destiny. आप याद रखिए इस बात को कि जिस व्यक्ति से आपको संवाद नहीं करना है, आप उससे संवाद ना करें, अन्यथा आप अपने मकसद और मंजिल से भटक सकते हैं।
What happened to Eve in the Garden of Eden? ईव के साथ क्या हुआ था उस बगीचे में? It was a conversation. हवा के साथ क्या हुआ था? उनके आपस में बातचीत थी, संवाद हुआ। See, it was not a temptation, it was just a conversation. और देखिए, वो उकसाने की प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन ये आपस में सिर्फ एक बातचीत हुई। It was just what is wrong with a conversation, Pastor? आप बताइए कि आपस में बातचीत करने में क्या बुराई है? He's just a friend, no? बिल्कुल मित्र है, मित्रवत। But you have no idea what a conversation can do to derail your destiny. आपको इस बात का गुमान और एहसास नहीं होगा कि आपकी आपसी संवाद आपके मकसद से कैसे भटका सकती है, भटका देती है। If you're having conversations with people that God has not assigned to you, then that person has the capacity to take you off of where God wants you to go. और देखिए, यदि एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया हो कि आपसे वो बातचीत, संवाद, वार्तालाप करे, याद रखिए वो अपरिपक्व होगा, उसमें इतनी क्षमता नहीं होगी और वो आपके मुख्य आपकी वजह जो है उससे वो आप उस विषय से वो उसको भटका देगा। You know the story of Moses. He is now running away from Egypt and he reaches the land of Midian. और देखिए, वो मिद्यानियों के देश में पहुंच गया, मिस्र से भागकर। And then he is at the well and he is having a conversation with a lady. और देखिए, कुएं के पास में पहुंचकर एक महिला से उसकी बातचीत शुरू हुई। And he is in fact helping the lady. और देखिए, सही मायने में तो वो उस महिला की सहायता कर रहा था। See, you should understand, Moses has the anointing to be a helper, to be a pastor. और देखिए, मूसा के पास में ये अभिषेक था कि वो एक पासबानी करे, वो एक अगुवा बन पाए। He was called to be a deliverer. और उसको बुलाया ही गया था कि वो छुटकारे को दे। So if you are in Egypt, he was delivering there. जब वो मिस्र में था, वो वहां पर छुटकारा लोगों को दिला रहा था। People didn't like it, but he still kept delivering people there. हालांकि लोग उससे पसंद नहीं करते थे, बावजूद इसके वो लोगों को छुटकारा दिला रहा था। And then he ran away from that to the next place. वहां से वो भागकर अगले स्थान पर पहुंचा। But this was not a place God had assigned to him. लेकिन ये एक ऐसी जगह नहीं थी जहां परमेश्वर ने उसे पहुंचाने के लिए नियुक्त किया था। But he started delivering even over there. वहां पर भी वो छुटकारा देने लगा। For those of you who don't know the story, there were these people, shepherds, who would come and close the well so that these girls cannot draw water. और मैं आपको ये बता दूं कि चरवाहे जो होते थे कि वे कुएं को ढांप दिया करते थे ताकि ये लड़कियां पानी उसमें से ना निकाल लें। But then Moses came and delivered them and made sure they get their water. लेकिन मूसा पहुंचता है और वो इस बात को पुख्ता करता है कि ये बच्चियां, ये लड़कियों को वो पानी निकाल पाएं। But again, if Moses was on my podcast, I will ask him. और यदि मूसा भी मेरे उस शो में होगा जहां मैं बातचीत करता हूं, साक्षात्कार करता हूं, तो मैं ये पूछता, Hey Moses, aren't you supposed to be the deliverer of Israel? मूसा, क्या तुम इजराइल के छुटकारे के लिए नहीं नियुक्त किए गए थे? Why are you focusing on delivering Midianite women? और देखिए, तुम अपना ध्यान मिद्यानी महिलाओं को छुड़ाने और उनके छुटकारे के लिए क्यों लगा रहे हो? One conversation. एक बातचीत, One conversation led to him giving his heart, his hands, his resources, the next 40 years of his life to that relationship. आप देखिए, उसके संबंध अनावश्यक जो थे, उसके कारण उसने अपना हृदय दिया, अपना प्यार दिया और 40 साल वो इधर उधर भटकता रहा उस संबंध, उस रिश्ते के कारण। See, when God spoke to Abraham in Genesis, God told him that your descendants, they will go to Egypt for 400 years. देखिए, इब्राहिम को यह कहा गया था कि तुम्हारे आने वाली वंश और पीढ़ियां इजिप्ट, मिस्र में जाएंगी और वहां 400 साल के लिए रहेंगी। But in actuality, they were there in Egypt for 430 years. लेकिन सही मायनों में वे वहां पर 430 साल रहे। Which means there was a extension of 30 more years more than what God had planned. मतलब यह हुआ कि उन्हें 30 अतिरिक्त वर्ष वहां बिताने पड़े, जबकि परमेश्वर की योजना में सिर्फ 400 वर्ष ही थे। And where is Moses?
Where is the deliverer? और देखिए मूसा कहाँ है, वो छुटकारा देने वाला है कहाँ? He is playing hide and seek at a well. और वो तो कुएं के पास में लुका छुपी खेल रहा था. He's on Instagram all day. Let me explain it to you in your language, yeah? He's chatting with people on WhatsApp. और वहां पर देखिए लोगों से वो व्हाट्सएप पर बातचीत कर रहा है. He's having conversations with people that will keep him in bondage. और वो उन लोगों के साथ में बात कर रहा है जो उसे बंधुआई में बनाए रखना चाहते हैं. See, as soon as this lady's father saw Moses, he said, nice boy, let me give him a nice house, a nice car, and and a very, very good dowry also. So he'll settle here with us in Midian. और जैसे उस लड़की के पिता ने मूसा को देखा, उसने कहा कि मैं बढ़िया उसे धन दूंगा और अच्छी बढ़िया गाड़ी दूंगा और मैं उसे अच्छा मकान दूंगा और अपने साथ ही उसे रख लूंगा. And Moses, who was supposed to be the deliverer of Israel, is now a shepherd of Midian. और देखिए जो इजरायलियों का जिसे छुटकारा दिलाना था और देना था, वो अब एक चरवाहा बन गया. Same thing happened to Jacob. और यही बात याकूब के साथ हुई. He loved Rachel so much that he became a slave to Laban for the next couple of decades of his life. 2 दशकों तक उस रिबेका के प्रेम के कारण वो रेचल के प्रेम के कारण वो लाबान का गुलाम बन गया. And he is serving in a place where he is not supposed to be serving. और वो वहां पर सेवक बन गया जहां उसे बनना नहीं चाहिए था. See, if you read the previous story of Isaac and Rebekah in the Bible, यदि आप इसहाक और रिबेका के कहानी को पढ़ेंगे, उसके पहले की कहानी को, see, when Abraham sent out Eliezer to get a wife for Isaac, और अब्राहम ने एलियाजर को इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए जब भेजा, तो Eliezer asked, hey, what if the girl doesn't want to come here? Can I take Isaac over there? तो उसने पूछा कि यदि लड़की यहां आना ना चाहे तो क्या मैं इसहाक को वहां लेकर चले जाऊं? Is it okay if I take Isaac to go and live with your father's house? और मैं इसहाक को उसके पिता के साथ वहां पर रहने लेकर जाऊं तो यह क्या ठीक रहेगा, उचित होगा? Abraham said no. अब्राहम ने कहा नहीं. It's okay if Isaac remains unmarried for the rest of his life, but he cannot go back to that land. ये ठीक होगा यदि इसहाक जिंदगी भर कुंवारा बना रहे, लेकिन मैं उसे उसके पिता के घर नहीं भेजूंगा. Why? Because God had spoken to Abraham saying, leave your father's house and go to the land that I am showing you. और इसलिए कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तुम अपने पिता के घर को छोड़कर जो स्थान भूमि में तुम्हें दिखाता हूं, तुम वहां की ओर चलो. And here is a Jacob who is willing to compromise on his destiny so he can have a relationship with Rachel. अब देखिए याकूब यहाँ पर जो उसका गंतव्य स्थान है वहां पहुंचने की बजाय वो एक समझौते में पड़ गया और इसलिए वो अपने मूल उद्देश्य को वो उससे भटक गया. So what Abraham said no to Isaac is now what Jacob is doing. अब अब्राहम ने जो इसहाक से ना कहा था वही अब वो याकूब से कह रहा है. Now Jacob is doing the exact same thing that his father Isaac did not do. और याकूब वही कर रहा है जो उसके पिता इसहाक ने नहीं किया. In fact, you should understand the urgency of Eliezer. When Eliezer went and saw Rebekah, he met her today, and the very next morning he left the house. He didn't want to stay for 2 days. और देखिए एलियाजर ने जब रेबेका के घर में उसे देखा, वो वहां पर 2 दिन से ज्यादा टिका नहीं. 2 दिन भी नहीं टिका. 2 दिन से भी नहीं टिका और वो तुरंत दूसरे दिन ही निकल के अपने घर जहां पर उसे जाना था संदेश पहुंचाने के लिए पहुंच गया. And he said, I cannot stay here. I need to go back to my master. और वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मुझे अपने स्वामी के घर में जाना होगा. There are some places where if you stay for 3 days, you will settle there. कई ऐसे जगह होते हैं यदि वहां आप 3 दिन भी रुक गए तो फिर आप वहीं रह जाते हैं. See, Jacob, he got Rachel, he got Leah, he got everything, and he's still living there. और देखिए याकूब के पास में रेचल मिली, लिया मिली और सब कुछ हुआ, लेकिन वो अब भी वहीं पर है. Even now he is a slave to his father-in-law Laban. और लाबान जो उसका ससुर था
अब भी वो वहां पर उसकी बंधुआई में है, उसकी गुलामी में है। But this morning we are coming out of bondage. हालेलुया। और आज की सुबह हम उस बंधुआई से छूटकर निकलने जा रहे हैं। This morning we are exposing all those false conversations that you've had. और आज हम उसका सब खुलासा करेंगे जो हमारी बातचीत में गलती और गलत बातचीत हुई। This morning the Lord is disconnecting certain ties. और आज की सुबह में परमेश्वर कुछ रिश्तों को डिस्कनेक्ट कर रहा है, उसे अलग कर रहा है, उसे तोड़ रहा है। There are certain WhatsApp conversations that are going to be deleted this morning. आज कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट्स होंगे जो परमेश्वर उसे पूर्णतः मिटा डालेगा। Certain contacts that will get blocked after today's service. और Yeah. आज की सेवा के बाद में कुछ ऐसे पहचान के कांटेक्ट होंगे जिसे आप ब्लॉक करना चाहेंगे। See, it's very important that you guard your relationships. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने रिश्तों को जरा संभल कर आप उसे बनाए रखें। This is not only for married people. This is not only for unmarried people. Even for married people, Yes, you yes. have to guard your relationships. ये सिर्फ अविवाहित लोगों के लिए नहीं बल्कि विवाहित लोगों के लिए भी है कि आप अपने रिश्तों को, आप अपने संबंधों को सुरक्षापूर्ण दृष्टि से बनाएं। And certain things go wrong because of just one conversation. और कुछ बातें तो सिर्फ एक ही संवाद, एक ही बातचीत से पूरी तरीके से बिगड़ जाती हैं। And this morning, as we pray, as we talk about these things, there is going to be light that will come and show you what are those relationships that you need to avoid. और देखिए आज जब हम बात यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, आपके हृदय में परमेश्वर वो रोशनी जगाएगा जो बातें आपको अपने जीवन से निकालनी और छोड़नी हैं। See, you should understand when Saul is having a conversation with these girls, they could have said, "Oh, wait, come, let's talk about this. Let's come and hang out with us. Help us with our problems." और वो लड़कियां से जब वो बात कर रहा था शाऊल, तो वो हो सकता है लड़कियां ये कहती कि जी आओ थोड़ा समय और व्यतीत करें, कुछ बातचीत करें, कुछ और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। But then what Saul didn't understand, what Saul didn't know, is that these girls belong to Zuph. और वो शाऊल को नहीं मालूम था कि ये लड़कियां जो हैं जुफ से हैं। And the DNA of the girls in Zuph is different. और जो लड़कियां थी जुफ की, उनका डीएनए जो है वो बिल्कुल फर्क है। They do not attract people to themselves, they attract people to Jesus. वे अपनी और लोगों को आकर्षित नहीं करती, लेकिन वे आकर्षित करती जरूर हैं, लेकिन यीशु मसीह की ओर। See, all the other girls that we heard about, all of them, they attracted people to themselves. लेकिन देखिए जितने दूसरी लड़कियों के बारे में हमने सुना, वे सभी लड़कियां अपनी ओर लोगों को आकर्षित करती थी। But here are girls that are coming from Zuph. लेकिन यहाँ पर ये लड़कियां जुफ से हैं। And the Bible says they told what exactly he needs to do so he can go and reach his destiny, reach his ordained prophet. और वे लड़कियों ने उन्हें वही बात बताई जो शाऊल को जहां पर गंतव्य स्थान में पहुंचना था, वही रास्ता उन्होंने बताया, वही उनको कहा। See, in verse 12, let me read it for you. It says, they replied saying, yeah, stay right on this road. This seer, this darshik that you're looking for, he is at the town gates. He has just arrived to take part in a public sacrifice up at the place of worship. Hurry and catch him before he goes up there to eat. The guests, they won't begin to eat until he arrives to bless the food. These are girls who are talking. They told the entire timetable of that day. और ना सिर्फ जुफ में कैसे पहुंचना है ये बताया, लेकिन पूरे दिन की समय सारणी, पूरा प्रोग्राम, कार्यक्रम उन्होंने बता दिया। They had so much details about what is going on in Zuph. और जुफ में क्या क्या हो रहा है उसकी पूरी विस्तृत जानकारी इन लड़कियों के पास में थी। See, these are times when girls, they did not have access to a lot of information. और ये एक ऐसा वक्त था
जब लड़कियों के पास में बहुत सारी सूचना और जानकारी नहीं होती थी, only the men were the leaders in the city. और शहर में सिर्फ पुरुष लोग जो हैं वे ही शहर में जो थे वे अगुवे होते थे। On all the main meals, it will be the men who will be invited. और खास लोगों के लिए भोजन खास लोगों के लिए ही आमंत्रण किया जाता था। And it will be the family heads of the city who will come to sit at these meals. और आमतौर पर शहर के परिवार के जो मुखिया लोग होते थे उन्हें इस नेवते में इस भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता था। But here we see that these girls, they are saying, hey, we know what's going to happen. We know when the prophet will come. We know how long you have. If you go right on this road, you will reach just in time for the prophet to meet with you. और लड़कियों के पास में कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा थी, विस्तृत जानकारी थी, इसलिए उन्होंने शाऊल से ये कहा कि तुम अभी फुर्ती करो, तभी तुम समय पर कार्यक्रम के पहले जहां तुम्हें पहुंचना है वहां तुम पहुंच पाओगे। You know, as we are listening to the story of what happened to Saul, I just feel that there is an impartation coming on some of us to be those kind of girls. और देखिए जैसे हम इस शाऊल के बारे में सुन रहे हैं, मुझे यह एहसास और महसूस होता है कि कुछ परमेश्वर की दिव्य शक्ति और सामर्थ आप में से कुछ लोगों में उतर रही। And all of a sudden, now your conversations are going to be so full of what God is doing in this church. और आपकी आपस की बातचीत अब कुछ इस प्रकार से होने जा रही है कि परमेश्वर इस कलीसिया में अब क्या क्या करने जा रहे हैं। You will be aware of everything that is happening in your church. अब आपके जानकारी पूरी होगी कि आपकी कलीसिया में अब क्या क्या हो रहा है, होने वाला है। You don't have to ask, probably ask the pastor. I don't know what is happening today. मुझे नहीं मालूम कि आज आपके पासवान से आप पूछते हैं या नहीं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। That will not be your story. अब ऐसा नहीं होगा। Your story will be saying, I know how to get your encounter with Jesus. और मैं अब आप ये कह सकते हैं कि अब हमारी मुठभेड़ और मुलाकात यीशु मसीह के साथ किस प्रकार होगी, इसकी जानकारी मुझे है, मैं जानता हूँ। I know how to get your breakthrough. Come, I will show it to you. और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ब्रेक थ्रू कैसे होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, आप ये कहेंगे। See, don't keep sending everybody to the pastor. कृपया अपने पास में आने वाले सभी लोगों को आप पासवान की ओर ना धकेले, वहां तक ना पहुंचाएं। Don't keep giving his number to everybody. कृपया उनका संपर्क सभी से ना फैला दें। It is necessary that you know what God is doing in Zuf and you direct them to that. और ये आपको ज्यादा जानकारी महत्वपूर्ण होगी कि जुफ में परमेश्वर क्या कर रहा है और आप वहां उन्हें भेजें। Even if you're at the well, your heart needs to be in the city. यहां तक कि आपका यदि आप स्वयं कुएं के पास में है तो आपका हृदय जो है आपके शहर, आपके नगर में होना चाहिए। Yes, may you influence people for the right reason. और आप सही कारणों से सही लोगों को आप प्रभावी रूप से उन्हें दिशा निर्देश दें। No, you cannot spoil others. You cannot be spoiled by others, but may you influence people to do the right thing. आप लोगों को बर्बाद खराब ना करें, लेकिन आप लोगों को आबाद करें, उन्हें बेहतर बनाएं, उन्हें प्रभावी बनाएं। You know, Jesus had a conversation with a woman at the well. आप जानते हैं यीशु मसीह की भी एक बातचीत एक महिला के साथ कुएं के पास में हुई। Do you know this story? क्या आप जानते हैं उस कहानी को? What was the end of this story? उसका अंत क्या था उस बातचीत का? The Bible says this woman, she went and told everybody in Samaria, I met a man, Jesus. हालेलुया। वो महिला ने सामरिया में जाकर हर किसी से ये कहा, आज मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। So I want to pray that every one of your conversation on WhatsApp will end with this. और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी बातचीत जो व्हाट्सएप पे होती है उसका अंजाम कुछ इस तरीके से निष्कर्ष निकले। That the person you are chatting with, they will say, oh man, today I encountered Jesus. और जो बातचीत आपके साथ में कर रहे हैं व्हाट्सएप में, वो ये कहने पाए कि आज मेरी मुलाकात, मेरी मुठभेड़ यीशु मसीह के साथ में हो पाई। Today I got the address to Zuf. और आज मुझे जुफ का पता मिल गया है। Today I know I found a place where I can get my answers. और आज मुझे ये पता चल गया कि मेरी
सवालों का जवाब कहां से मुझे मिलेगा? Please don't spend all your time in saying, I miss you, I'll see you next. No, that is not what the well is for. और देखिए, आप सिर्फ इसी बात पे समय व्यर्थ ना करें कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं ऐसी बहुत सी बात. The point of the well is to direct people to Zuf. हालेलुया. और बात असल में यह है कि कुएं के पास में आप इसलिए हैं कि आप लोगों को निर्देशित करें सही जगह पर पहुंचाने के लिए. It is not so you can keep giving them water and keep them at the well. No. You have to redirect them back to Zuf. आप देखिए, वहां पर आपको कुएं के पास में इसलिए नहीं रखा गया कि आप लोगों को पानी पिलाएं, बल्कि आपको वहां पर इसलिए है कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन दें. That you send them back to Jesus. आमीन. आप उन्हें वापस यीशु मसीह के पास में भेजिए. See, these girls, they had a revelation of their prophet. और ये लड़कियों के पास में वो प्रकाशन था अपने उस नबी के विषय में, उनके बारे में. And the Bible goes on to say that as soon as they heard this, they began to obey the instructions that these girls gave, and they entered the town. Verse 14, they entered the town, and as they passed through the gates, here was Samuel who was coming out toward them to go to the place of worship. और देखिए, वहां पर वो जैसे ही उस नगर के पास में पहुंचे, उनकी मुलाकात शमूएल से हुई, जिससे वे मुलाकात करने के लिए निकले थे. Exactly what the girls had said will happen happened. और जो कुछ उन लड़कियों ने कहा था ऐसा होगा, वैसा ही हुआ. And finally, here is Saul. He is meeting with Samuel himself. और देखिए, अंत में शमूएल से ही शाऊल की मुलाकात हुई. And here is Samuel. Now we are going to shift the focus to Samuel. अब देखिए, हम अपना ध्यान जो है कुछ समय के लिए शमूएल पर लगाएंगे. And the Bible says in the next verse, अगली आयत में बाइबल ये कहती है that the previous day God had spoken to Samuel. एक दिन पहले ही परमेश्वर ने शमूएल से इस विषय में बातें करी थी. That around this time tomorrow, और इसी वक्त कल, I'm going to make you meet a man from Benjamin. और बेंजामिन के गोत्र से एक व्यक्ति को तुमसे मैं मिलवाऊंगा. And he is the one who will be the leader of the people of Israel. और वो शख्स होगा जो इजरायलियों की रहनुमाई करेगा, उनका नेतृत्व वो करेगा. He will rescue them from the Philistines. और उन्हें फिलिस्तीनियों से बचाएगा. For I have looked down on my people in mercy and I have heard their cry. और वो ये कहता है कि मैंने उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना और मैंने उन पर रहम करी. यहोवा यूं कहता है. And because God heard the cry of the people of Israel, God chose a man called Saul. और देखिए, परमेश्वर ने इजराइल के पुकार को, उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना, और इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को उनके लिए नियुक्त किया. In the same way that God heard the cry of the people of Israel and God chose Moses. और ठीक उसी प्रकार इजरायलियों की पुकार को सुनकर परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया. And in the same way you see here, Samuel is given this word that I've heard their cry, I've heard their problems, I've heard their struggle, and there is a man who is going to be the answer to all the problems. और शमूएल को भी यही बताया गया कि मैंने उनकी दुहाई को सुनी, मैंने उनके संघर्ष को देखा, मैंने उनकी पीड़ा को सुना है, और इस कारण से मैं उनके लिए शाऊल को भेज रहा हूं. See, all through Saul's life, he has only been the answer to his father's problems. अब देखिए, शाऊल अपने पिता की समस्याओं का एकमात्र समाधान बनकर उभर गया. But all of a sudden, the word of the Lord is coming to Samuel saying he is the answer to all the problems of the nation of Israel. अब देखिए, शमूएल उसे ये कह रहा है, न सिर्फ ये अपने पिता की समस्याओं का समाधान है, लेकिन पूरे इजरायली लोगों की तमाम संघर्ष और समस्याओं का समाधान उन्हें शाऊल में मिलता है. And it is specifically mentioned that he's from the tribe of Benjamin. और खास तौर पर यह लिखा गया कि वो बिन्यामीन के गोत्र का है. And if you understand the tribe of Benjamin, it was not a very, very good tribe. और यदि आप बिन्यामीन के गोत्र के बारे में अध्ययन करें
तो ये बहुत ही उम्दा किस्म की गोत्र नहीं कही और मानी जाती थी। I'll not go into details, but if you read the book of Judges, you will see what happened to the tribe of Benjamin. न्यायों की पुस्तक को यदि आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बिन्यामीन के गोत्र के विषय में वहां क्या क्या लिखा है। At one point, the whole tribe of Benjamin was about to be extinct. और एक ऐसा वक्त आया कि उन्हें बिल्कुल उन्मूलन हो जाता, उनका एक ऐसा वक्त भी था बिन्यामीन के गोत्र का। This was the least of all the tribes of Israel. और ये सबसे छोटा, इजराइल के सभी गोत्रों में सबसे छोटा गोत्र था। This was a tribe that was disrespected in Israel. और इजराइल में इनका इस गोत्र के लोगों का सबसे ज्यादा अनादर हुआ करता था। This is a tribe that had sinned against God and sinned against Israel. और ये एक ऐसा गोत्र है जो इजराइल परमेश्वर के विरुद्ध और इजरायलियों के विरुद्ध भी वो पाप करता रहा, अधर्म करते रहे। And when God is looking to help the nation of Israel, God is looking at the tribe of Benjamin. और देखिए, जब परमेश्वर इजराइल के लोगों की सहायता करने के लिए ठान लेता है, उस समय परमेश्वर बिन्यामीन के गोत्र के व्यक्ति को चुनता है। And the next verse, it says, when Samuel saw Saul, the Lord said, that is the man that I told you about. He will rule my people. और देखिए, जैसे ही शमूएल और शाऊल की मुलाकात होती है, परमेश्वर शमूएल से कहता है, इसी व्यक्ति के बारे में मैं तुझसे कह रहा था, यही इजराइल के लोगों का प्रधान बनेगा। And you see, you know, when Saul understands this, his first question is this: do you know which tribe I am from? और जब शमूएल ने शाऊल को ये पूरी बातें बताई, तो पहला सवाल शाऊल ने शमूएल से ये किया, क्या आप जानते हैं कि मैं किस गोत्र में का हूं? Do you know which family I am from? क्या आप जानते हैं कि मैं किस परिवार से हूं? Do you know who I am? क्या आप जानते हैं कि मैं हूं कौन? Do you know my past? क्या आप मेरे इतिहास के बारे में जानते हैं? Do you know where I used to work before I came here? क्या आप जानते हैं कि मैं कहां कार्यरत था यहां आने से पहले? Do you know how bad my marriage was? क्या आप जानते हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन कितना बदहाल रहा? Do you know how sad my whole life has been till this point? क्या आप जानते हैं कि मेरे पूरा जीवन कितना अंधेरे में था, कितना उदासी से भरा था अब तक? Are you really sure that God wants to select me? क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है कि परमेश्वर वाकई में मुझे चुनना चाहता है? Let me read Samuel's language. मैं आपको शमूएल की भाषा के बारे में पढ़ के सुनाता हूं। 17, verse 18. Just then Saul approached Samuel at the gateway and asked, can you please tell me where's the house of the seer? He is talking to the seer and he's saying, where is the house of the seer? और देखिए, दर्शी से ही पूछ रहा है दर्शी के बारे में कि क्या आप जानते हैं उसका घर कहां पर है? And so Samuel replied, I am the seer. हालेलुया। और तब शमूएल ने कहा, मैं ही वो दर्शी हूं। Go up to the place of worship ahead of me. और तुम जाओ यज्ञ के उस जगह पर मेरे से पहले पहुंचो। Go to the place of worship. और वहां पर पहुंचो। Go to the place of worship. और वहां पर जहां पर यज्ञ हो रहा है वहां पर पहुंचो। We will eat together. वहां पर हम भोजन साथ में करेंगे। And in the morning, I will tell you everything that you want to know. और सुबह मैं तुमको वो सब बातें बताऊंगा जो कुछ तुम जानना चाहते हो। And don't worry about the donkeys, और गदही के बारे में तुम ज्यादा परेशान मत हो, because they have already been found. और क्योंकि वे तो अब मिल चुकी हैं। But I am here to tell you something, लेकिन मैं तुम्हें अब कुछ बताना चाहता हूं that you कि तुम and your family, और तुम्हारे परिवार, you're the focus of all of Israel's hope. अब तुम पूरे इजरायलियों के केंद्र बिंदु में होगे, क्योंकि तुम ही उनकी सहायता का एक मूल मंत्र होगे। This is Samuel's language. और ये है शमूएल की भाषा। He is pinpointing Saul and he's saying, now you are the center, you are the focus of all of Israel's hope. अब इजराइल की पूरी आशा की उम्मीद का एक ही केंद्र बिंदु होगा, वो तुम ही हो। See, till now, you were the only person who needed help from you was your father Kish. और देखिए, अब तक तुम्हारे पिता की आपने सहायता करी,
या तुम्हारे पिता को ही तुम्हारी सहायता की दरकार अब तक थी, but right now you are reaching a place where all of Israel is now going to look to you for answers. लेकिन अब पूरा इज़राइल तुम पर निगाह रखेगा अपनी समस्याओं का समाधान के लिए. The focus is going to fall upon you, my dear friend. अब जो फोकस है वो तुम पर केंद्रित होगा. Do you know what I started telling you yesterday? There is a process. आप जानते हैं कि कल मैंने क्या कहा था जब मैंने अपने शुरुआती भाषण में ये कहा कि ये एक प्रक्रिया है. There is a preparation. इसके पीछे एक तैयारी है. There is a readiness that you need to go through. आपको उसके लिए और उसके साथ में निकलना और उसमें जाना पड़ेगा. And in the process of getting ready, Samuel is pinpointing things to Saul and saying, now all the focus of Israel is going to be upon you. और शमूएल उस तैयारी के लिए शाऊल से कहता है कि तुम पूरे इज़राइल का केंद्र बिंदु होगे और ये तैयारी की प्रक्रिया में से तुम्हें गुजरना पड़ेगा. See, Saul had a lot of inferiority complex. और शाऊल के जीवन में, उसके मन में बहुत सी नकारात्मक बातें थी. All through his life, nobody thought anything good can come out of him. और शाऊल के बारे में बेहतरीन बातें लोग नहीं करते थे. He never thought he will anytime be a leader. और उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी अगुवा बन पाएगा. See, it's not like he did not have the qualities to be a leader. He was very handsome, he was very tall, but in his heart, he was very inferior. और देखिए, ऐसा नहीं है कि उसमें वो गुणवत्ता, उसमें वो खासियत नहीं रही. वो बहुत लंबा था, उसमें हृदय में उसके सब कुछ तैयारी थी, उसमें बहुत सारे गुण थे. But then in his heart, he thought less about himself. लेकिन अपने हृदय में वो अपने आप को कमतर आंकता था. He always used to criticize himself. वो अपने आप की स्वयं आलोचना किया करता था. He looked down upon himself all the time. वो अपने आप को स्वयं ही नीचा दिखाया करता था. In fact, because of this insecurity, he lost the royalty that God gave him later on. और बाद में उसकी इसी असुरक्षा जो स्वयं उसने अपने दिल और दिमाग में रख ली थी, उसने परमेश्वर के साथ का वो संबंध बाद में खो दिया. And this was the man we are talking about. He was very insecure. ये हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो स्वयं बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस किया करता था. He has no confidence. उसके पास में कोई आत्मविश्वास नहीं था. And when he looks at people, he is thinking, okay, they are criticizing me. और जब वो लोगों को देखता, वो यही सोचता था कि ये लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं. When he would be in conversation, he would feel like everybody wants to hurt him. और जब वो लोगों से बातचीत में लिप्त हुआ करता था, उसको यही लगता कि लोग उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते, उसे हर्ट करना चाहते हैं. But now God is pointing fingers at him and saying, hey, now you are the answer to everybody's problems. अब देखिए, परमेश्वर उस पर उंगली उठाकर उसे केंद्र बिंदु में लगा रखना चाहता है और ये कहना चाहता है कि तुम अब तमाम समस्याओं का समाधान तुम ही रहोगे. See, I'll tell you a little bit of my story. मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं. I grew up in a good, God-fearing Christian home. और मेरा पालन पोषण, मेरे परवरिश एक परमेश्वर से जो डरते थे उस परिवार में हुई. But all through my life, I've faced a lot of rejection. और जिंदगी भर मुझे तिरस्कार किया गया. And because of which there was this deep insecurity in my heart that said that nothing good will come out of your life. और चूंकि मेरे हृदय में इस प्रकार की असुरक्षा बस गई थी, मेरे दिल और दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ थी कि मेरे जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता इस असुरक्षा के कारण. And because of which I will always try to gain people's attention and I will do everything possible to make others happy. और इसलिए मैं दूसरे लोगों को अपनी ओर दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था ताकि मैं लोगों को खुश कर पाऊं. And when I was just in my 6th or 7th standard, I used to, be a gang leader in my class. Gang leader. और 6वीं 7वीं में Pastor is आप not believing me. This guy.
आपको लगता था कि आप गैंग लीडर हैं, And I used to, you know why I did it? I did it for support, just to feel loved by people around me. और मैं दूसरों को सहयोग लेता था और मैं कोशिश करता था कि लोग मुझसे प्रेम करें. And you know, every day I would rob different stores, kirana stores. और हर दिन मैं अलग अलग किराना दुकानों से कुछ चीजों को चुराया करता, डकैती डाला करता, आप कह सकते हैं. Not because I needed anything. इसलिए नहीं कि वो पदार्थ, वो चीजें मुझे चाहिए थी. I used to steal and I would go and distribute it in my class. और मैं उस चीजों को चुराता था और अपनी कक्षा में दूसरों लोगों को बांटा करता था. And everybody will become my friend. और सभी लोग मेरे दोस्त बन जाते थे, यार बन जाते थे. And everybody is like, oh man, Priji is the coolest. He's the best. और लोग यही कहते थे कि प्रजी शानदार, सबसे बढ़िया लड़का है. And over a period of time, I became their leader. और कुछ समय पश्चात मैं उनका मुखिया बन गया, अगुवा बन गया. And then we would have gang fights between my class and another class, my school, another school. I will be in the forefront to beat people up and break their jaws and all of that. और मैं लोगों के जबड़े तोड़ दिया करता था मारपीट में, क्योंकि हमारी कक्षा से और दूसरी कक्षाओं के आपस में लड़ाइयां होती, हमारे स्कूल और दूसरे स्कूलों से झगड़ा जब होता था, मैं उसके सबसे अग्रिम पंक्ति में लड़ाई करने के लिए तत्पर रहता था. And you know, this is a very long story. I can keep on talking about all the things that I have done before I met Jesus. और यीशु मसीह से मुलाकात के पहले की घटना का एक लंबी फेहरिस्त है. मैं उसके बारे में घंटों आपसे बात कर सकता हूं. All of that I did it because I wanted some love, some attention from people. और मैं ये सब इसलिए करता था कि लोगों का ध्यान आकर्षण अपनी ओर कर पाऊं, लोगों के प्रेम को मैं पा पाऊं. And then finally I understood who Jesus is. जब मैं अंत में यीशु मसीह को समझ पाया कि यीशु कौन है, I left all the bad activities. और मैं अपनी पुरानी और गलत गतिविधियों को छोड़ दिया, त्याग दिया. I came to church. मैं कलीसिया में आया. I started doing the same thing in the church. और यही बात मैं कलीसिया में फिर दोहराने लगा. Whenever I would lead worship, it was so, oh man, people should like what I'm doing. और जब मैं आराधना का नेतृत्व देता था, तो मैं ये सोचता था कि लोग मेरी ओर देखें और मैं लोगों का ध्यान आकर्षण का केंद्र बन जाऊं. When I would preach a sermon, it will be like, oh, this guy didn't like me. Oh, that person didn't like it. I would be depressed after that. और यदि मैं प्रचार कर रहा हूं और मुझे ये एहसास होता था कि वह व्यक्ति मेरे प्रचार को अच्छा नहीं लगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अवसाद में चला जाया करता था. You know, at the age of 13, I started preaching at the age of 13. और 13 साल की उम्र में मैं प्रचार करना शुरू कर दिया था. And you know, you should understand, from that age, I've been speaking in different churches, you know, village ministry, lot of things I started doing at a very young age. और मैं बहुत ही किशोरावस्था में कई कलीसियाओं में प्रचार करता, कई गांव की सेवकाइयों में मैं जाया करता था. And then I just knew how to get people excited. और मुझे समझ आ गया कि लोगों को किस प्रकार से उन्माद में, उत्साह में भरना चाहिए, भर सकते हैं. And my preaching, my ministry became so that I can make people happy. और मेरी प्रचार की प्रणाली कुछ इस प्रकार से हो गई कि मैं लोगों को खुश करने के लिए प्रचार किया करता. You should understand, I still love Jesus. आपको इस बात को समझना होगा कि मैं अब भी यीशु मसीह से प्रेम करता हूं. At that time also I used to love Jesus. और उस समय भी मैं यीशु मसीह से प्रेम करता था. But because there was this insecurity in my heart, लेकिन मेरे हृदय में एक असुरक्षा की भावना थी. because I did not know my true value, क्योंकि मुझे सही कीमत, अपने मूल्य के बारे में सही मूल्य का आकलन मैं नहीं जानता था. I was constantly looking to see what people will say about me. और मैं लगातार इस बात का ध्यान रखता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे. And a big portion of my ministry I spent in trying to make people happy. और मेरे सेवकाई का एक बहुत बड़ा समय मैंने इस बात में व्यर्थ कर दिया कि मैं लोगों को खुश कर पाऊं. And if you read Saul's life, that's what he did too. और यदि आप शाऊल की जीवनी को अध्ययन करेंगे, वह भी ऐसे ही किया. There was an instruction that was given to Saul saying, don't do anything, wait till I come there. Prophet Samuel told him. और शमूएल ने उससे ये कहा था कि तुम कुछ नहीं करना जब तक मैं वहां ना पहुंचूं. And here is Saul,
he is looking at the people and he is seeing that people are not liking the waiting period. और देखिए, आप जानते हैं कि इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता. And so Saul is looking at his soldiers and he's like, I don't like the fact that they are waiting. और शाऊल को लगा कि उसके जो सैनिक हैं उसके इंतजार में हैं और वो ये बात उसे अच्छी नहीं लगी. And some soldiers even started leaving. और यहाँ तक कि कुछ जो उसके सैनिक, उसके सेवक थे, वे उसे छोड़ने लगे. And immediately Saul said, oh, don't go. We will sort this out. और तुरंत उसने कहा कि नहीं, हम लोग इसको, आप रुकिए, जाइए मत, बहुत जल्दी हम इसका निवारण कर लेंगे, समाधान कर लेंगे. And then Saul did what Samuel should have been doing. और शाऊल ने वो किया जो शमूएल को जिसे करना चाहिए था. See, I would ask Saul, what is your problem, Saul? This is not your assignment. Why did you do what others were supposed to do? मैं शाऊल से यही पूछता कि तुम्हारे को जो जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तुम उसके बारे में फिक्रमंद और उसको करने के लिए क्यों इतना ज्यादा उत्साहित हो? Because there was deep insecurity in his heart that people will leave him. और वो ये वजह थी उसकी कि हृदय की गहराइयों में उसके पास में असुरक्षा की भावना घर कर गई थी. And because of which he ended up disobeying God, disobeying the prophet, disobeying the word of God. और इसलिए परमेश्वर के वचन, नबी और परमेश्वर की बातों का वो अनाज्ञाकारी बन गया. Nobody from the tribe of Benjamin is supposed to bring offerings to God. It is only Levites who can do the offerings. और लेवी ही परमेश्वर के लिए बलिदान और भेंट ला सकते थे. बिन्यामीन के गोत्र में से किसी के पास में यह अधिकार नहीं रहा. They could bring the offering and give it to the prophet, and the Levite, they will have to do the sacrifice. वे लाते थे जरूर भेंट को, लेकिन उन्हें लेवियों को देना पड़ता था और लेवी परमेश्वर को वो भेंट चढ़ाया करते थे. And it was not allowed for him to do this kind of act in Israel. और इस प्रकार इज़राइल में इस प्रकार के बातों को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती थी. And yet here we see Saul is doing something completely unbiblical, completely against what was told to him because of insecurity in his heart. असुरक्षा की भावना शाऊल के हृदय में थी, इसलिए जो कुछ इसे कहा, निर्देश दिया गया, उसके ठीक विपरीत अब वो काम कर रहा है. But do you know that God knew that this man has insecurity? क्या आप जानते हैं परमेश्वर भी जानता था कि इसके हृदय में असुरक्षा की भावना है. And even before he became the king, God started affirming his heart. और इसके पहले कि वो राजा बने, परमेश्वर उसके हृदय को मजबूत बना रहा था, स्थिर कर रहा था. And that is why the prophet now looks at him and says, now you and your family, you are the focus, you are the center of attention, you are the one on whom the whole of nation will depend on. और इसलिए शमूएल नबी ने उससे ये कहा कि तुम अपने परिवार और इज़राइल के ध्यान का केंद्र बिंदु बनोगे. And he's affirming his heart. और वो अपने हृदय को तैयार कर रहा है. Why? So that insecurity can be uprooted from his heart. और वो इसलिए कि असुरक्षा की भावना उसके हृदय से बिल्कुल निकल चली जाए. See, the answer to insecurity is not in what my pastor says about me or what my church says about me. असुरक्षा के भावना का ये मतलब नहीं कि मेरे पासवान या कलीसिया के दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं. The solution is not to get them to say good about me. ये समाधान नहीं होगा कि वे लोग मेरे बारे में भला कहें, बेहतर कहें. The solution is what is God saying about me. जो समाधान है वो यही है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहते हैं. And when I hear what God is speaking about me, और जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, we have to learn to embrace it without questioning. और तब हमें बिना सवाल उठाए उन बातों का आलिंगन करना चाहिए, उसको अपने समेट लेना चाहिए. That is when you have to say yes to it without saying, oh, I don't have money, I don't have people, I don't have this, I don't have that. Just say yes to whatever God says. आपको जो कुछ परमेश्वर कहते हैं सिर्फ हाँ कहना है. आप ये नहीं कहें कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है. जो कुछ परमेश्वर ने आपसे कहा आपको ये जी हाँ. That is who I am. I believe that. I say yes to what God is saying. और यही मैंने किया जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने उस पर विश्वास किया. And it is necessary. This morning,
you know, there are those among us, I can feel it in my spirit. There is so much of insecurity that is going to be evaporated this morning. हालेलुया। आप याद रखिए कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों के मन की असुरक्षा की भावना मैं अपने आत्मा में ये देखकर कहता हूँ कि आप में से जो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं उनकी असुरक्षा की भावना यहाँ से निकल जा रही है, वाष्पीकृत हो रही है। God is looking at you and saying, hey, you are a man of great power. और परमेश्वर आपको देखकर ये कह रहा है कि तुम्हारे पास में परमेश्वर की वो महान ताकत और सामर्थ है। God is not saying I am great or I am powerful. God is saying you are great. और परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं महान और सामर्थी हूं, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम महान और सामर्थी हो। When God met Gideon, what did God say? Man of valor. और देखिए जब गिदोन से परमेश्वर ने कहा तो वो कहा कि तू शूरवीर सूरमा है। You are not ordinary. You are a man of great power. और वो तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुम्हारे पास में असाधारण ताकत और सामर्थ है। Now Gideon is asking, I've never fought a battle before. और गिदोन ने ये कहा कि इसके पहले तो मैं कभी युद्ध किया ही नहीं। But God is saying, go in the strength that you have. हालेलुया। और परमेश्वर ने गिदोन से कहा तू इसी बल के साथ चला जा। Whatever strength that you have, that is enough, Gideon. Now go in the strength Praise that the you Lord. already have. जो कुछ गिदोन तेरे पास में परमेश्वर ने बल दिया वही काफी है, तुम्हें इसी बल के साथ चले जाओ। Because the hope of Israel, the focus of Israel is you right now. क्योंकि उम्मीद की किरण शाऊल इज़राइल की अब तुम ही हो। And this morning, I'm pointing fingers at each and every one of you and saying, hey, you are the center of attention today. और मैं आप सबों पर उंगलियों का इंगित करके ये कहना चाहता हूं कि आप ध्यान आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु हो परमेश्वर की तरफ से। See, so when we come to God, God is not just telling you who He is, God is also telling us who you are. परमेश्वर जब बातें करता है तो परमेश्वर ये बताता है कि परमेश्वर कौन है, लेकिन परमेश्वर साथ में ये भी बताता है कि आप कौन हैं। And this morning, your true identity is coming to you. और आज आपके सही पहचान, आपके व्यक्तित्व की सही शख्सियत की पहचान आज आप पहचान पाएंगे। And you are getting a revelation of what you are going to do with your life. और आज आपको वो प्रकाशन होगा कि आपको अपने जिंदगी में क्या करेंगे। You are getting a revelation of how you are going to make a change in your nation. और तब आज आपको अपने देश में क्या परिवर्तन ला पाएंगे, आज आपको इस बात का गुमान और इस बात का प्रकाशन दोनों होगा। You are getting an understanding of how you are going to be an answer to people's problems. और अब आप आज ये प्रकाशन आपको मिलेगा कि आप दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे बन पाएंगे। Today the Lord is showing it to you right now. और अभी परमेश्वर आपको इस बात का प्रकाशन दे रहा है। Right now, your eyes are opened to see who you are in the spirit realm. अब आपकी आंखें खुलेंगी, आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कौन हैं, ये आप पहचान पाएंगे। Your identity is no longer that you are from Benjamin. अब आपका पहचान ये नहीं हुआ कि आप बिन्यामीन के गोत्र से हैं। Now your identity is that you are the hope of Israel. अब आपकी पहचान ये है कि आप इज़राइल की उम्मीद और आशा हैं। Now your identity is that you are the solution for India. और अब ये बात ध्यान रखिए अपने ज़हन में कि आप भारत की समस्याओं का समाधान हैं। That you are the solution to poverty. आप उस तंगहाली का, उस गरीबी का, उस कंगालपन का आप एक समाधान बन पाएंगे। You are going to bring answers to lack of education in India. और आप उस समस्या का समाधान बनेंगे जो शिक्षा के अभाव में लोग आज पाए जाते हैं। You are the answer to unsaved people in India. और उन लोगों के लिए भी आप एक समाधान होंगे जो भारत में अब तक मन फिराए नहीं हैं। You are the answers to young people who are lost in addictions. अब आप उस नशे के उन्मादी लोगों के लिए एक समाधान बनेंगे जो भारत में युवा पाए जाते हैं। You are the answer to those that are locked up in prisons because of crime. और अपराध के कारण जो कैद गृह में है, कारागृह में है, आप उनके लिए एक समाधान बनेंगे। The Lord is speaking to you and telling you who you really are. और अभी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि आप सही मायने में कौन हैं।
how powerful you are. आप कितने सामर्थी हैं। And God is saying, go in the strength that you already have. आमीन। और परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जो बल तुम्हारे पास में है उसी बल के साथ आप जाइए। Go in the strength that you have already received from me. और जो बल परमेश्वर ने आपको दिया है पहले से ही उसी बल के साथ आप जाइए। And as the Lord is speaking to you, I want you to give up all your insecurities intentionally. आप जानबूझकर अपनी असुरक्षा की भावनाओं को अपने जीवन से निकालिए, जैसे अभी आपसे परमेश्वर वार्तालाप कर रहा हो। See, I'll help you to identify insecurity. मैं आपको आपकी मदद करूंगा आपकी असुरक्षा आपके भीतर क्या है वो बताने की। See, when you're worried about what people will say, that is a big indicator that you have insecurity. सबसे पहला पहचान ये है कि आप इस बात की चिंता करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं। If you're afraid of the outcome of a particular investment you're going to do, you have insecurity. आपका निवेश का परिणाम सोचकर आप विचलित होते हैं, डरते हैं, तो मतलब ये आप असुरक्षित हैं। That's why Jesus said, don't be anxious about tomorrow. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कल की चिंता ना करो। Because that's what unbelievers also do. क्योंकि अविश्वासी लोग भी तो यही करते हैं। Those that don't have a revelation of their heavenly Father, they also do the exact same thing. और वे लोग जिनके पास में स्वर्गीय पिता का प्रकाशन नहीं, वे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। But you are different. You are not like those people. लेकिन आप उनके समान नहीं, आप एक अनूठे, एक अलग किस्म के लोग हैं। You are not an orphan. You have a Father in heaven who is आमीन। thinking about you. आप अनाथ नहीं हैं, आपके पास में एक पिता है जो स्वर्ग में है। You have a Father who is all the time giving you strength and ability and courage and wisdom and anointing that you need. और याद रखिए कि परमेश्वर आपको वो सब कुछ देता है, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो कुछ आपकी जरूरत है उसका सब कुछ परमेश्वर आपको देता है। So you are not an orphan anymore. आप कोई अनाथ नहीं हैं। So whenever we behave like an orphan, there is an insecurity in us. जब कभी भी हम अनाथ के तौर तरीके अपना लेते हैं, उसी प्रकार से सलीके में हम ढल जाते हैं, हमारे में असुरक्षा की भावना बैठ जाती है। Whenever we are swept away by what everybody else is saying, we have insecurity in us. और जब हम लोगों के बहकावे में और लोगों के कहे में बह जाते हैं, मतलब ये कि हम असुरक्षित महसूस करते हैं। We are not secure in who Jesus is. We are not secure in our relationship with God. हम परमेश्वर के साथ के रिश्ते में सुरक्षित महसूस नहीं करते। But this morning that is changing, my dear friends. आमीन। लेकिन आज के दिन में ये समझ में एक परिवर्तन हो रहा है। This morning our focus is on what God is saying about us. आज के सुबह की हमारी केंद्र बिंदु परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं उस पर हमारा ध्यान आकर्षण होना चाहिए। All eyes closed. सभी आंखें बंद हो जाएं। I want you to remember that word that your father or your mother said about you. मैं चाहता हूं कि अपने माता पिता के उन शब्दों को आप स्मरण करें। Some of the things that are very hurtful. कुछ बातें हो सकती हैं कि आपको घायल करने वाली हो। Some things that they said that you are never going to become good in life. और हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि जिंदगी में तुम कभी भी सफल नहीं होगे, तुम बढ़िया बेहतर नहीं बन पाओगे। They must have said that you are never going to make enough money. और वो शायद उन्होंने कहा होगा कि तुम कभी जिंदगी में धन भी नहीं कमा पाओगे। They must have said you will always be a failure. उन्होंने हो सकता है ये कहा हो कि जिंदगी भर तुम असफल रहोगे। But this morning we are rejecting the voice of what the enemy has said. लेकिन आज की सुबह में शत्रु ने जो कहा हम उसको अस्वीकार करते हैं। In Jesus' name we cancel the lies of the enemy. और हम यीशु मसीह के नाम से उन तमाम बातों को निरस्त करते हैं, निष्फल करते हैं। Every curse that was declared upon you, sometimes even by Christians, we cancel those curses in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से उन सभी श्राप को हम निरस्त और निष्फल करते हैं। यहाँ तक कि हो सकता है कुछ मसीही लोगों ने भी श्राप आपको दिए हों। But this morning we cancel the power of those words in your life. आज के दिन में जो ताकतवर
शब्दों का प्रयोग आपको श्राप देने के लिए कभी किसी ने किया हो, वे सब श्राप निष्फल और निष्क्रिय हो जाएं। Yeah, everything that the enemy has said, it is coming to your remembrance so you can cancel it. और आपको जो कुछ स्मरण आता है, जो शत्रु ने आपके विरुद्ध में कहा हो, वो सब कुछ निरस्त हो जाए। Speak to the enemy right now. Just say, get behind me, Satan. और आप शैतान से, अपने शत्रु से यह कहें कि तुम पीछे हटो। Jesus looked at Peter and said, get behind me, Satan. यीशु मसीह ने पतरस से कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा। Because Peter's voice was now used by the enemy. But today we are looking at those people and we are saying, get behind me, क्योंकि Satan. पतरस की आवाज को शत्रु ने इस्तेमाल किया, लेकिन आज हम कहते हैं, शत्रु हमारे सामने से पीछे हट जाओ। In Jesus' name, we cancel the power of those voices. और यीशु मसीह के नाम से वे तमाम श्राप को हम निरस्त करते हैं। Yes, you are going to become prosperous one more time. आप अवश्य ही आने वाले दिनों में समृद्धि को प्राप्त करेंगे। Yes, your children will come to Jesus. आपके संतान यीशु मसीह के पास में आएंगे। Yes, your children will be prosperous. आपके बच्चे अवश्य आशीषित और समृद्ध होंगे। Yes, you will not fail one more time. अब आप एक बार और असफल नहीं होंगे। Yes, your business idea is not a flop. अब आपके कारोबार के संबंधी निर्णय अब वो बेकार नहीं होंगे। Yes, you are not going to fail another exam in Jesus' अब name. आप किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। I am replacing what the enemy has said with God's voice. और मैं उन शब्दों को जो शत्रु ने आपके जीवन में रख दिए हैं, उनको यीशु मसीह के शब्दों से मैं उसके ऊपर काबिज करता हूं। I'm speaking to some young people right now. और मैं अभी कुछ युवाओं से बात कर रहा हूं। Yes, you will overcome that temptation in Jesus' name. आप यीशु मसीह के नाम से वो टेम्पटेशन से आप पा पाएंगे। Yes, you will not fall into sin again. अब No, आप वापस उस पाप में नहीं गिरेंगे। no, we command the lies of the enemy to fail today. और हम ये आज्ञा देते हैं, शैतान की तमाम बातें असफल हो जाएं, निरस्त हो जाएं। Because the hope of all Israel, you are the hope of all Israel. Yeah. क्योंकि आप इज़राइल के उम्मीद और आप इज़राइल की आशा हैं। And today the Lord is liberating you from the lies that the enemy has said. और अभी परमेश्वर आपको उन तमाम बातों से जो शत्रु ने आपके विरुद्ध में कही, उससे आपको वो अलग कर रहा है, आपको वो पृथक कर रहा है। For the next few minutes, I want you to open your mouth loud and you begin to cancel everything that you remember. I want you to cancel it right now. और मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह को इस समय खोलें और वे तमाम बातों को निरस्त करें जो शैतान ने आपके से कहा होगा, आपको स्मरण आता है। The Bible says, no weapon formed against you will prosper. और बाइबल ये कहती है कि कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध है वो कभी भी फलदायी ना होगा। And every tongue that rises against you, you will condemn. और जो कुछ जुबान आपके विरुद्ध में होती है वो निरस्त होगी, निष्फल होगी। Not your pastor will condemn, but you will condemn. ना सिर्फ आपके पासवान ये कहेंगे, बल्कि आप भी उसे निरस्त कर सकेंगे। No. Your voice has to be heard in the spirit realm today. और आपकी आवाज को आत्मिक क्षेत्र में आज सुना जाना चाहिए। And I want you to confess what Jesus has said about you. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने आपके बारे में क्या कहा। Yes, Jesus said, I am building my church. हालेलुया। उसने ये कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा And the gates और अधोलोक के फाटक the gates of hell will not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। This is what Jesus is saying about your marriage. I'm going to build your marriage. और यही बात यीशु मसीह ने आपके वैवाहिक जीवन के बारे में कही। I'm going to build your marriage. और मैं आपके वैवाहिक जीवन को और आगे बढ़ाऊंगा। I'm going to build your business. और मैं आपके व्यवसाय को स्वस्थ करूंगा, बढ़ाऊंगा। I'm going to build your career. और मैं आपके भविष्य को बनाऊंगा। I'm going to build your children. मैं आपके भविष्य के आपके संतानों के भविष्य को बनाऊंगा। I'm going to build your city. Indoor, I'm going to build your city. और मैं आपके शहर को
पुनः दृढ़ करूंगा, बनाऊंगा, and the gates of hell shall not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न हो पाएंगे। Come on, speak out what the Lord is speaking about you. आप अपने मुख से अपने मुख को खोलिए, परमेश्वर जो आपसे कह रहा है उससे आप कहें। Lamuna kasedere. हालेलुया। Yabala shama nama kandere kele. Yes. No, no, no. We are not victims of what the enemy has said. हम जो शत्रु ने कहा उससे पीड़ित नहीं हैं। We are not victims of what Satan, what the serpent is saying. और शैतान और सांप जो कह रहा है हम उसके पीड़ित नहीं हैं। Yeah. हालेलुया। Heal your people, Lord. पिता, ये लोग हम आपके पास के हैं। Heal your people, Lord. और लोगों को तू चंगा कर। Heal their hearts, Daddy. पिता, उनके हृदय को आप चंगा कीजिए। Heal their insecurities, Daddy. उनकी असुरक्षा की भावना को आप चंगा कीजिए पिता। May the love of Jesus be poured into your heart right now. प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रेम आपके हृदयों में आ जाए। May the love of Jesus envelop your heart, embrace your heart right now. होने दे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके हृदय को आलिंगन करे। Yes, you may have sinned 100 times, but His love is still coming after your heart. हो सकता है कि हम 100 बार पाप किए हों, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में आ रहा है। You must have failed so many times, but His love will not give up on you right now. हो सकता है कि आप सैकड़ों बार असफल हो गए हों, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अब भी आप पर उतर रहा है। Yes. हालेलुया। Praise you, Jesus. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are. As I'm singing this song, I want you to receive the healing from the balm of Gilead. जब मैं इस प्रकार के भजन को गा रहा हूं, आप उस चंगाई को स्वीकार करिए। You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are the peace in the midst of a storm. You are the air I breathe. Oh Lord, 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 you are the air I breathe. Oh Lord,
You are the air I breathe. You are. Every eyes closed. हर एक आंखें बंद रहें. But the Lord is releasing healing upon marriages. और परमेश्वर आपके वैवाहिक जीवन में एक चंगाई भेज रहे हैं. I don't, if you can, all eyes closed, if you can, if you need prayer for your marriage, I want you to put your hands up in the air. यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना की जाए, अपने हाथों को ऊंचा उठाए और अपनी आंखों को सभी लोग कृपया बंद रखें. Lord, we pray for these hands that are praying for their marriages. परमेश्वर, हम इन हाथों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है. We pray for those that want healing in their relationships. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो चाहते हैं कि उनके आपसी संबंधों में एक चंगाई मिले. And today we uproot every insecurity and jealousy in marriage. और सभी प्रकार की ईर्ष्या की भावना और असुरक्षा की भावना जो उनके वैवाहिक जीवन में है वो निकल जाए. Lord, we release the love of Jesus into these homes right now. और परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम को हम इन घरों में उंडेल देते हैं. Lord, we cancel human love and we release divine love, agape love. और हम मानवीय प्रेम को निरस्त करते हैं और परमेश्वर आपके उस अगापे प्रेम को परिवारों में हम उंडेल देते हैं. We cancel the plan to kill marriages in Jesus' name. और हम यीशु मसीह के नाम से वैवाहिक जीवन को असफल करने वाली शक्तियों को निष्क्रिय और निष्फल करते हैं. We fight that spirit of unfaithfulness in Jesus' name. और हम उस अविश्वसनीय आत्मा को साथ में हम झगड़कर उसे निकाल फेंकते हैं. In Jesus' name, we cancel the spirit of barrenness in marriage. और हम उस धूर्तता के आत्मा को भी हम वैवाहिक जीवन से निकाल देते हैं. We speak fruitfulness to come upon marriages right now. और हम उन परिवारों पर Lamuna khaba sedere. फल आने पाए, वरदान आने पाए. Lord, we release unity come back into the marriages in Jesus' name. और पिता यीशु मसीह के नाम से परिवार में एकता सूत्र बंध जाए. Mala khabo sene in Jesus' name. Lord, let answers come back in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से वे तमाम बातों का जवाब मिलने पाए. Every marriage that is struggling because of no money, we cancel those worries and those fears in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से घर परिवार में जो आर्थिक तंगी और पैसे के अभाव के कारण वैवाहिक जीवन में वैमनस्यता आ गई है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे निष्क्रिय और निरस्त करते हैं. In Jesus' name we rebuke the devourer. यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं. We rebuke the devourer. We rebuke the enemy. हम शत्रु को आज्ञा देते हैं निकल जाए. We release peace. और हम उन पर शांति की घोषणा करते हैं. We release the love of Jesus. हम यीशु मसीह के प्रेम को उन पर रिलीज करते हैं. We thank you, Lord, for the oneness that you're giving them. पिता परमेश्वर उस एकता के सूत्र के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन. All the married people, can I tell you something? सभी वैवाहिक जीवन में जो लोग पाए जाते हैं उनसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. You are the hope of Indore. आप इंदौर की उम्मीद और आशा हैं. You are the hope of Zuf. आप जुफ की आशा आप हैं. This ministry, Anmol Jeevan Ministry, the hope of Anmol Jeevan Ministry is your marriage. अनमोल जीवन सेवकाई का उम्मीद आप हैं. आपका वैवाहिक जीवन है. Amen. Yeah. Do you know that a marriage is the basic unit of every church? क्या आप जानते हैं कलीसिया की बुनियाद वैवाहिक विवाहित लोग हैं. And it is necessary that your marriage will prosper for your church to prosper. और इसलिए ये जरूरी होगा
कि आपका पारिवारिक जीवन समृद्ध बने, ताकि परिणाम स्वरूप कलीसिया समृद्धि की ओर जाए। Can I pray for one more thing before I finish? Can I pray for all the unmarried people in the house? All the unmarried people who want to get married. Can I pray for you? जो लोग अविवाहित हैं, कुंवारे हैं, कुंवारियां हैं, क्या आप चाहते हैं आपके विवाह के लिए मैं प्रार्थना करूं? I just want to declare that you will not meet your spouse just the same way that everybody else does. No. आप अपने साथी को वैसे नहीं पाएंगे जैसे आमतौर पर लोग पाते हैं। By directing them to yourself. आपकी ओर लोग दिखाकर, बताकर। No, you will meet your spouse in God's presence. आमीन। आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन साथी को पाएंगे। Not at the well, but in Zuf. You will meet them in Zuf. कुएं के पास में नहीं, लेकिन यहाँ जुफ में आपको वो मिलेगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? If you're not married, I want you to put your hand up in the air so we can just pray over your marriages right now. आप यदि अविवाहित हैं तो आप अपने हाथों को उठाएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। This prayer is for everybody who is waiting to get married, No matter how old you are, you can still lift your hand and we will pray for you. और इस बात से कोई प्रभाव नहीं डालता कि आप कितने उम्र के हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आप जरूर अपने हाथ को उठाएं। Father, we thank you for these hands right now and we release grace. परमेश्वर, इन जो हाथ उठाए हुए लोग हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और पिता, इन पर आपके अनुग्रह की बारिश होने पाए। And Father, we release answers. और परमेश्वर इनको आप उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए पिता। And I pray that in this season you would prepare their hearts for marriage. और पिता परमेश्वर इन्हीं ऋतुओं में ही, इसी समय इनके जीवन में वो तैयारी होने पाए विवाह की। Let their hearts be prepared, let their hearts be ready. और उनका हृदय तैयार होने पाए विवाह के लिए। Every lie the enemy has said, we cancel it in Jesus' name. सब झूठ जो शत्रु ने कहा, हम यीशु मसीह के नाम से उसको निरस्त करते हैं। Every bad example of marriage that they have, we cancel it in Jesus' name. और सभी वो बुरे उदाहरण, आदर्श जो उनके जीवन में दिखाए गए, वो सब कुछ निरस्त हो जाए। Lord, we release an example of godly marriage into their spirit. और परमेश्वर, हम उनके आत्माओं में ईश्वरीय भय और एक आदर्श परिवार उनके जीवन में छवि उतरने पाए। Lord, we release purity into their bodies. और परमेश्वर, हम उनको आप इनके जीवन में आपको हम उतार देते हैं परमेश्वर। We release purity in their bodies, in their physical bodies. और उनके शारीरिक जीवन में पवित्रता उतरने पाए। Lord, we release holiness in their hearts. और उनके जीवन में, उनके हृदय में पवित्रता उतरने पाए। And Father, we declare that they will meet their right person in your Zuf. और परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि उन्हें सही जीवन साथी जुफ में मिलने पाए। And Father, we declare that 2022 will be a year of unprecedented marriages in this church. और पिता परमेश्वर, 2022 में अभूतपूर्व विवाह इस कलीसिया में होने पाए। Yes, marriages that we didn't think will ever happen, they will happen in this year. और परमेश्वर, हम जानते हैं जो हमने सोचा नहीं, वह विवाह इस साल इस कलीसिया में होने पाएंगे। Father, we bless this church with godly marriages. परमेश्वर, हम कलीसिया को आशीष देते हैं, वे ईश्वरीय वैवाहिक बंधनों में बंधने पाए। And in Jesus' mighty name we pray. और यीशु मसीह के महान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। And everybody said a loud amen. और सभी कोई जोर से बोले आमीन। Get ready to eat at a lot of weddings. Yeah, get ready to eat at a lot of wedding feasts. आप वैवाहिक जीवन के शादी के बाद काटने वाले उस केक की खाने की तैयारी करना शुरू कर लें। 2022, there is a lot of marriages that is happening here. 2022 में बहुत से विवाह होने वाले हैं। 2022, there is going to be unprecedented weddings. 2022 में अभूतपूर्व विवाह होंगे। Not weddings that man has planned, but weddings that God has planned. और शादियां वो नहीं
जो इंसानों ने सोची होगी, योजना बनाई होगी, लेकिन विवाह वो जो ईश्वर ने नियुक्त किया। And when it happens, do send me a picture of your wedding, yeah? और जब ऐसा होगा तो कृपया करके एक तस्वीर मुझे अवश्य भेजिएगा, Because I know what God has done this morning. क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने आज सुबह यहाँ क्या किया है। I know for a fact that I'm going to get a lot of wedding pictures from Indore. और मैं जानता हूं कि Yeah. शादी के बहुत से तस्वीरें बहुत जल्दी मुझे मिलने वाली हैं, Yeah, because God is doing a new thing in this place. क्योंकि परमेश्वर नए कामों को इस शहर में करने जा रहा है। And before you get married, God has to heal your heart. इसके पहले कि परमेश्वर आपको तैयार करे विवाह के लिए, आपका हृदय आपको चंगा करने पाए। And that is what God was doing this morning. और यही आज सुबह परमेश्वर कर रहे हैं। And when your relationships are strong, you will be a blessing to your man of God. और जब आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं, आप अपने पासवान के लिए बेहतर सहायक बनते हैं, And you will be a blessing to your church. और आप अपनी कलीसिया के लिए एक आशीष होते हैं। Amen.